Hello and welcome everyone. This is part ninth of this series. We are studying Decision Making Techniques Chapter 2 CMA Final Strategic Cost Management. So we have done till question number 28. We will start from illustration number 29. A company produces 4 products A, B, C and D which marketed in cartoons. Of the total 20 machines installed, 8 are suitable for manufacturing all the 4 products and the remaining 12 machines are not suitable for the manufacture of product A and B. So this question is of optimum mix. Question is about 4 products A, B, C and D which is marketed in cartoon. So it has 20 machine installed. तो 20 मशीन कंपनी के पास इंस्टॉल्ड है जिसमें से 8 suitable है for manufacture of all the 4 products, but remaining 12 machines जो है वो only suitable, it is not suitable for A and D. सिर्फ वो हम लोग C और D ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. Each machine is in production for 300 days per year. So days of working कितना है 300 days per year and each is used on a given product in full terms of full days and not in fraction. The company however has not problem in obtaining adequate supplies of labor and raw material. तो labor और raw material का कोई यहाँ पे limitations नहीं है. The marketing policy is that all 4 products should be sold and the minimum annual production should be 3000 cartoons. तो ये पहला हमारे पास constraint आ गया है कि minimum इतना produce करना ही है 3000 cartoons. Fixed cost budgeted amount to rupees 50 lakhs. Production cost and price data are also given as under. So production per day per machine is 14 for A, 4 for B, 3 for C and 6 for D. Selling price per cartoon is this much. Cost of process 1 direct materials per day per machine is rupees 140. तो यहाँ पे per machine में given है, per day में given है, इसको हम लोग को per cartoon करना है cartoon wise. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एक दिन में प्रोडक्शन पर कार्टून होता है 14 और एक दिन का हमारा मटेरियल कॉस्ट जो है लगता है 140, तो पर कार्टून कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 14, 52 डिवाइडेड बाय 4, 545 डिवाइड बाय 3 एंड 84 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा पर कार्टून में. सिमिलरली हम लोग डायरेक्ट लेबर भी पर कार्टून बेसिस पे निकाल लेंगे डिवाइड करके. देन प्रोसेस 2 हमारा डायरेक्ट मटेरियल पर कार्टून ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ कुछ कन्वर्शन का जरूरत नहीं है. With a view to meeting the increasing demand for products A and D, the companies are contemplating to convert such number of machines as may be necessary out of the 12 machines which at present are unsuitable to produce product A and D, not all-purpose machines. The cost of conversion of this machine is rupees 2,10,000 per machine. The expenditure is to be amortized over a period of 3 years. The company expects 12.5% return on this expenditure. तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि in order to meet the demand, A और D का जो increasing demand है उसको meet करने के लिए वो लोग सोच रही है कि जो 12 मशीन्स है जो कि ए और डी नहीं बना सकती, उसको एक कन्वर्शन के तहत ये कन्वर्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन करके उसको सुटेबल कर देगी, तो वो ए और डी भी प्रोड्यूस कर पाएगी. तो इसका कॉस्ट जो आएगा वो आएगा 2,10,000 पर मशीन और ये एक्सपेंस जो है वो 3 साल के पीरियड में एमोटाइज किया जाएगा. कंपनी 12.5% रिटर्न एक्सपेक्ट करती है ऑन दिस एक्सपेंडिचर. Market research indicates that the company's sales product A and D can be increased to 37,500 cartons and 5,400 cartons respectively. We are required to calculate the optimum profit of the company if the existing machine were worked on most profitable basis before conversion. तो conversion के पहले हम लोग को optimum profit निकालना होगा. सबसे पहले हम लोग रैंकिंग टेबल निकाल लेंगे और वहाँ से optimum profit निकालेंगे. बहुत ही ईजी है. सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल का कन्वर्ट करके 140 डिवाइड बाय 14 to 10 आ जाएगा. बाकी का भी स्टेप्स हम लोग निकाल लेंगे डिवाइड करके, तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा. और प्रोसेस 2 का भी कॉस्ट गिवन ही है 30, 240 एंड 390. हाँ, ये सारा गिवन है. इसको हम लोग ऐड करके सेलिंग प्राइस से लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर कार्टून आ जाएगा. अब कंट्रीब्यूशन पर मशीन डे निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग 14, जितना हमारा पर मशीन प्रोडक्शन है एच डे का. तो ए के लिए हमारा 14 है, तो 124 को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ईच डे का प्रोडक्शन से. ए का कितना है 124 इंटू 14, तो हमारा आंसर इस वजह से आ जाएगा. उसी के बेसिस पे हम लोग रैंकिंग कर देंगे. ए का रैंक 1 रहेगा, डी का 2, सी का 3 और बी का 4. इसके बाद हम लोग ऑप्टिमम मिक्स स्टेटमेंट बना लेंगे. मिनिमम नंबर ऑफ कार्टून कितना चाहिए, 3,000 तो चाहिए ही सबका. कैलकुलेशन कर लेंगे अवेलेबल मशीन डेज का.
मशीन ए और डी के लिए, ए और डी प्रोडक्ट के लिए मशीन डेज कितना है हमारे पास, टोटल मशीन है 8 और डेज है 300 एक साल में, तो टोटल हमारा इतना मशीन डेज है। बी और सी के लिए कितना हो जाएगा 300 इंटू 12, क्योंकि 12 मशीन बी और सी अच्छे से बना सकती है। इसके बाद हम लोग ए में कितना दे रहे हैं 3000 यूनिट्स तो बनाना ही है, डिवाइड बाय पर डे कितना प्रोडक्शन हो रहा है इतना आ जाएगा। डी का भी निकालेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 6 कार्टून पर डे हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा। सो ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी कितना मशीन डेज बच जा रहा है 1685। इस तरह से बी और सी का भी निकाल लेंगे तो हमारा इतना यहाँ पे आएगा 1850। अब यहाँ जो हमारा ए और डी के लिए आ रहा था 1685, ये हम लोग ए को एलोकेट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका रैंकिंग जो है हायर है। तो हमारा पर डे कितना हो रहा है 14 मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग कार्टून्स कितना हम लोग बना सकते हैं वो आ गया यहाँ पर। अब हमारा सी और बी और सी के लिए कितना था 1850। बी और सी में रैंकिंग सी का हायर है, इसलिए हम लोग सी को पूरा का पूरा एलोकेट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय कार्टून्स प्रोड्यूस पर डे। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ कार्टून्स आ गया यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन पर कार्टून हमारा निकल चुका है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट से, हमारा प्रॉफिट, ऑप्टिमम प्रॉफिट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आ जाएगा। क्वेश्चन, रिकमेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑल पर्पस मशीन गिविंग सपोर्टिंग कैलकुलेशंस। यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना है टू ऑल पर्पस मशीन्स। कैलकुलेशन बड़ा इजी है, कंपटीशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन टू बी कन्वर्टेड ए और डी। सबसे पहले मार्केट रिसर्च क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग ए का सेल इतना इंक्रीज कर सकते हैं और डी का इतना, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा उसी हिसाब पर रहेगा। ओके, अब नंबर ऑफ मशीन डेज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्टून्स प्रोड्यूस पर डे, इसका 14 है और इसका 6 है, डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। नाउ टोटल मशीन डेज रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड, तो कितना मशीन डेज रिक्वायर्ड है प्लस करके हमारा वैल्यू आएगा 3579, लेस नंबर ऑफ मशीन डेज ऑलरेडी अवेलेबल। ऑलरेडी हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमारे पास 8 मशीन है जो कि ए और डी प्रोड्यूस कर सकती है, और हमारे पास डेज है 300, तो इतना तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कितना मशीन डेज हम लोग को रिक्वायर्ड हो जाएगा, लेस करके 1179। सो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड कितना हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय 300, हमारा डेज है यहाँ पर, तो 3.93, या फिर हम लोग 4 मशीन का जरूरत है यहाँ पर। क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट ईयर द ऑप्टिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स इनटू ऑल पर्पस मशीन्स। वर्किंग कर लेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मशीन डेज कितना है 20 मशीन है इंटू 300 डेज है, हमारा टोटल 6000 मशीन डेज है। ए को कितना हम लोग दे रहे हैं, हमारा जो डिमांड जितना है डिवाइड बाय पर डे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा इतना मशीन डेज रिक्वायर्ड फॉर ए। बी के लिए कितना है 3000 मिनिमम हमारा रिक्वायर्ड था, डिवाइड बाय 4, और डी के लिए कितना है 5400 हमारा डिमांड था, डिवाइड बाय 6 जो पर डे का हमारा प्रोडक्शन था, तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा 4000 समथिंग। तो हम लोग लेस कर देंगे 6000 से, हमारा मशीन डेज अवेलेबल फॉर सी कितना है, ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ कार्टून प्रोड्यूस बाय सी कैसे हो जाएगा, दिस इनटू हमारा पर डे कितना होता है उसका, तो 5014। तो अब हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा 50 लाख का फिक्स कॉस्ट था, प्लस हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितना था 2,10,000, तो ये 2,10,000 इंटू हम लोग ये कर रहे हैं क्या, हमारे कितना टोटल मशीन कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 मशीन कर रहे हैं, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय, इसको हम लोग 3 साल में एवरटाइज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए 2,10,000 इंटू 4/3, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा आ जाएगा 5280 यहाँ पर। इसके बाद हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे कंपटीशन ऑफ ऑप्टिमम मिक्स आफ्टर कन्वर्जन एंड प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ कार्टून्स कितना हो जाएगा, ए का इतना, बी का 3000, सी इतना और डी इतना। अब हमें कंट्रीब्यूशन पर कार्टून गिवन है ऑलरेडी, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे यहाँ से, फिक्स कॉस्ट हमारा हम लोग निकाल के देख चुके हैं कैसे आया, और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा सम ऑफ इतना, लेस कैपिटल कॉस्ट, दैट इज हम लोग को रिटर्न ऑन कॉस्ट ये चाहिए था ना, रिटर्न ऑन कन्वर्शन, तो हमारा कन्वर्शन ये जो वैल्यू है ये हमारा यहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 30, अ फर्म हैज 2 मशीन्स नेमली P and Q. P can be used for production of either A or B, or both. Machine Q can be used for production of either of X and Y, or both, X or Y or both. In order to maintain customer relations, a minimum quantity of 1500 units of A and B and 1200 units of X and Y should be produced. So यहाँ पर एक फर्म है जो कि जिसके पास 2 मशीन है P और Q। मशीन P या तो A बना सकती है या B बना सकती है या दोनों ही बना सकती है, और Q जो है वो प्रोडक्ट X या Y या फिर दोनों ही बना सकती है।
मिनिमम क्वांटिटी, क्योंकि ये ऑप्टिमम मिक्स का समय है तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रेंट तो रहेगा यहाँ पे, तो मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 1500 है ए और बी के लिए, और 1200 है एक्स और वाई के लिए. The production and cost data for this year is given. Machine hours available for P is 4500, Q is 5100. Machine used A के लिए P, B के लिए भी P, X Q and Y Q. Machine hours required per unit of output is 1, 1.2, 1.2, 1.25, 1.25 and 0.8. Selling price per unit given है direct material, direct labor and variable overhead per machine. यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट लेबर पर मशीन आवर गिवन है और यहाँ पर मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट गिवन है, तो हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 4 लाख per annum. An additional expenditure involving a fixed overhead of 25,000 rupees per annum will convert the machine P and Q into versatile center, so just such that any four of the product can be manufactured. तो ये सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. यहाँ पर बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट तो इतना लगेगा ही, प्लस हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग 25,000 का करें तो पी और की जो मशीन है वो वर्सेटाइल सही हो जाएगा और हम लोग कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे. The rate of output on this machines and direct wages will however remain same. तो इसमें कोई कॉस्ट में चेंजेस नहीं आएगा. We are required to set an optimal product mix subject to minimum market commitment both before and after the conversion of machines into versatile center. So सबसे पहले हम लोग optimum product mix निकाल लेंगे रैंकिंग करके. सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर का कैसे आ रहा है, 1 हमारा क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, नहीं मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट हमारा 1 है और डायरेक्ट लेबर जो है मशीन पर मशीन आवर 90 है. 1 × 90 हमारा डायरेक्ट लेबर आ जाएगा 90. बाकी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे. वेरिएबल ओवरहेड 12 गिवन है, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और प्रायोरिटी कर देंगे. प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा क्या आ रहा है, वाई का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आ रहा है, फिर एक्स एंड फिर बी एंड देन ए. अब हम लोग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल लेंगे. मिनिमम यूनिट कितना प्रोड्यूस करना था, ए और बी का 1500 और एक्स और वाई को 1200. हमारे पास रिमेनिंग आवर्स कितना है, अगर हम लोग का टोटल आवर्स कितना है यहाँ पर, ए के लिए हमारा कितना है 4500, पी के लिए हमारा 4500 है और क्यू के लिए हमारा 5100 है टोटल. तो हमारा 4500 में से ए को इतना यूटिलाइज कर लेंगे यूनिट्स, और आवर कितना लगता है 1, तो 1500 आवर्स इसका लगेगा, और बी के लिए हमारा 1500 इंटू 1.25 आवर्स दिया हुआ है. अवेलेबल आवर्स बी का कितना है इतना, और ए को हम लोग कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, बी के लिए इतना, टोटल हम लोग लेस कर देंगे तो हमारा अवेलेबल आवर्स कितना आ जाएगा 1125. और यहाँ पर क्यू का भी इस तरह से ही निकाल लेंगे, 1200 इंटू एक का फिर दूसरे का आवर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लेस करके हमारा अवेलेबल आवर्स आ जाएगा. अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, एक्स पी के लिए हमारा ए और बी था, तो ए और बी में हमारा रैंकिंग किसका हायर था, बी का हायर था, इसलिए बी का कितना आवर लगता है पर यूनिट डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स बी का निकाल लेंगे. और यहाँ पर सी और डी एक्स और वाई में सबसे ज़्यादा रैंकिंग हायर था वाई का, तो वाई का हमारा जो आवर पर यूनिट है तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा. तो बिफोर कन्वर्जन हमारा प्रॉफिट आ चुका है. अब हम लोग आफ्टर कन्वर्जन देखते हैं क्या प्रॉफिट है. सबसे पहले आवर्स, टोटल आवर्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है. अब आवर्स यूटिलाइज कितना हो रहा है, हमारा टोटल जो आवर्स है सबके लिए 1500 इंटू 1, 1500 इंटू 1.25, 1200 इंटू 1.25, हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स निकाल लेंगे, प्लस करके हमारा अवेलेबल आवर्स आ जाएगा. तो हम ये सारा जो आवर्स है आफ्टर कन्वर्जन क्या करेंगे, क्योंकि वाई का रैंकिंग हायर है और हम लोग कोई भी मशीन से कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम लोग मशीन वाई को प्रेफर करेंगे. मशीन वाई का हमारा आवर्स पर यूनिट 0.8 है, अवेलेबल आवर्स डिवाइड कर देंगे आवर्स पर यूनिट से, हमारा टोटल यूनिट्स वाई का निकल आएगा. अब लोग यहाँ पर ऑप्टिमम मिक्स टेबल बना लेते हैं. मिनिमम यूनिट कितना प्रोड्यूस करना था, 15, 15, 12, 12. अब रिमेनिंग जो है वो हम लोग किसके लिए यूटिलाइज करेंगे, वाई के लिए. वाई का यहाँ पे कितना वैल्यू आया था 4706. पॉइंट में भी आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट में गिवन है. तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा टोटल कितना आ जाएगा ऐड करके, इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो गिवन ही है, हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन ले रहे हैं. 25,000 हो रहा है, ठीक है. 25,000 और हमारे पहले का कितना था 4 लाख, तो 4 लाख प्लस 25,000 इतना हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया. अब प्रॉफिट कितना आएगा, लेस करके वैल्यू निकाल लेंगे. सिंस ये जो प्रॉफिट है हमारा, एज अ प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय दिस मच अमाउंट, इट इज एडवाइज टू कन्वर्ट द मशीन. तो हमारा प्रॉफिट जो अभी आ रहा है ये पहले के मुकाबले ज़्यादा है, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे. Illustration number 31. Novelties Limited seeks your advice on production mix in respect of the 3 products, Superb, Bright and Fine. You have the following information.
तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एडवाइस चाहती है ऑन प्रोडक्ट मिक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, वो 3 प्रोडक्ट्स पे अपना एडवाइस चाहती है। सुपर, ब्राइट और फाइन जो है उनका 3 प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर गिवन है, क्या गिवन है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल है ईच के लिए, वेरिएबल ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर कितना है, डिपार्टमेंट ए और बी है यहाँ पर, और डायरेक्ट लेबर कितना है, रेट पर आवर 8 एंड 16 आवर्स है, टोटल 6 एंड 6, फिर अगेन आवर्स एंड आवर्स गिवन है यहाँ पे। ओके, अच्छा ये 3 के लिए दिया है ना, अच्छा हाँ ओके। ये सुपर के लिए ये वाला है, ब्राइट के लिए ये वाला, और फाइन के लिए ये वाला आवर्स गिवन है, ठीक है। तो हमारा टोटल वेज रेट कितना हो जाएगा, रेट पर आवर इंटू आवर्स, तो 8 इंटू 6 48, 16 इंटू 6 96, इसी तरह से 8 इंटू 10 80, 16 इंटू 15 हमारा वैल्यू निकाल लेंगे ब्राइट के लिए, और फाइन के लिए भी हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा लेबर कॉस्ट आ गया। फ्रॉम द करंट बजट यू हैव फर्दर डिटेल्स एज बिलो। एनुअल प्रोडक्शन सुपर, ब्राइट और फाइन का कितना होगा, 5000, 6000 एंड 10000 रेस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड इज 16 लाख। सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर। तुम्हारा यहाँ पे कंस्टेंट कितना है, मैक्सिमम हम लोग इतना ही सेल कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स का। So you are also to note that there is a constraint on supply of labor in department A and its manpower cannot be increased beyond its present level. तो डिपार्टमेंट ए का मैन पावर हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। Suggest the best production and sales mix from the standpoint of maximum profitability. Prepare statement setting out the profit resulting from the budgeted production and best alternative suggested by you. पहले रैंकिंग निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड भी गिवन है। डिपार्टमेंट ए और बी का हम लोग निकाल चुके हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है। सबको ऐड करके लेस कर देंगे एसपी से, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हम लोग उसके बाद निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन जो गिवन है डिवाइडेड बाय लेबर आवर जो है, क्योंकि डिपार्टमेंट ए का हम लोग यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, ठीक है। देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए। तो डिपार्टमेंट ए का हमारा यहाँ पर लेबर आवर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जो कि है सुपर के लिए 6 है, तो 144 डिवाइड बाई 6 हमारा वैल्यू हो जाएगा 24, और ब्राइट और फाइन के लिए कितना है 10 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आ जाएगा, प्रायोरिटी बेसिस हम लोग सेट कर देंगे इसी कंट्रीब्यूशन पर आवर के बेसिस पे। अब हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है, हमारा ये जो यूनिट्स है ये हम लोग का एनुअल प्रोडक्शन है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल करके लेस कर देंगे फिक्स जो गिवन है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एट बजट कितना आ रहा है, अब ठीक है ये तो हो गया ना। अब यहाँ पर 5000 यूनिट्स था, और ए का कितना था, सुपर के लिए 6 और ब्राइट के लिए 10 और फाइन के लिए 5 था। मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स निकाल लेंगे एज पर डिपार्टमेंट ए के अकॉर्डिंगली, टोटल इतना आ रहा है। अब इसमें से हम लोग सबसे, ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। अब हमारा अगर यहाँ पे सजेस्ट किया जाए बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो उसके लिए हम लोग रैंकिंग का यूज़ करके निकालेंगे। तो यहाँ पर अवेलेबल आवर्स तो हमारा डिपार्टमेंट ए के लिए कितना था, इतना। इसमें से अगर हम लोग सुपर के लिए यूटिलाइज कर लेंगे, तो सुपर के लिए कितना यूटिलाइज करेंगे, 6000 टोटल हमारा सेल्स कितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं। तो हम लोग जो हमारा डिमांड आएगा, सेल्स डिमांड फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो कितना है 6000। तो 6000 इंटू रेट पर आवर्स कितना था, 6 था ए के लिए, सुपर के लिए। तो क्या हो जाएगा 6000 इंटू 6, टोटल कितना होगा 36। तो हम लोग 1,40,000 से 36 लेस करेंगे, जो आवर्स बचेगा उसको हम लोग फिर बी को एलोकेट करेंगे, क्योंकि इसका रैंकिंग सेकेंड है। कैसे होगा, बी का हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए 8000 है, 8000 इंटू रेट कितना है 10, 8000 इंटू 10 लेस कर देंगे जो आवर्स लेफ्ट था। अब हमारा कितना बच जाएगा, 36 था ए के लिए, और बी के लिए कितना हो जा रहा था 80। ये दोनों को ऐड करके हम लोग 1,40,000 से लेस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 24,000। 24,000 जो बचेगा हम लोग फाइन के लिए यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, फाइन के लिए यूटिलाइज कर देंगे। सी नंबर ऑफ यूनिट 6000, 8000 एंड ये फाइन के लिए 48,000 आ गया। कैसे आया, 24,000 आवर्स था, डिवाइड बाय एक को कितना प्रोड्यूस के लिए कितना लगता है 5 लगता है, तो हमारा 48 आ जाएगा, 4800। तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया। कंट्रीब्यूशन तो गिवन है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल कर हमारा फिक्स कॉस्ट से लेस करके प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट जो है अगले साल इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लोग रैंकिंग मेथड फॉलो करते हैं तो, ठीक है।